Hello, soul readers, and welcome back to Soul Stories with Mitakshi. If this video found you today, then it's gonna find you right before your next big upgrade, and I'm gonna talk about what this upgrade is about, and I'm gonna touch a little bit upon the kind of situation that you are going to find yourself in right before this upgrade that's coming your way. So, I'm seeing that lately you have had a realization in your life that there are certain things that you have grown out of, that you have matured out of, and that you need to walk away from. So, there has been a certain realization in your life about certain things that are no longer serving you. In the past, these things meant a lot to you. These could be certain habits, connections, or anything basically that you took a lot of pride on. Take it how it resonates to your own particular situation. So this thing that you are upgrading in this area of life, it could be your career, it could be your love life, it could be your family life, it could be your health, but whatever sector this is in, and it could be multiple sectors too, so take it how it resonates. Okay, this is gonna resonate in the feeling of it. Okay, when I'm gonna deliver the message, the scenarios are gonna resonate with you, and that's how you're gonna know what area of life it is for you actually. So there were certain things that you build for yourself, and you took a lot of pride in these things. These could be people, habits, situations, and these things meant a lot to you. You kept them very close to your heart, and you've always protected these things, and you've kept them stacked. But lately, they have stopped resonating with you. And you decided to finally walk away from whatever this thing is that you once really valued. Or these could be multiple things, but now you have outgrown that person that was dependent on these things, and these things don't matter to you as much anymore. Not only are you walking away from this thing, you have been investing in this thing for so long, and you have been waiting कि कुछ तो रिटर्न आएगा इस चीज़ से आपको, इस चीज़ से, इस पर्सन से, इस सिचुएशन से आपको कुछ तो रिटर्न आएगा. यू वर कॉन्टिन्यूसली वेटिंग ऑन इट, एंड आपने बहुत ज़्यादा नर्चर किया है और नरिश करा है इस चीज़ को, और अपना बहुत ज़्यादा टाइम और फोकस इस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, बट वो रिटर्न्स जो हैं वो कभी आए ही नहीं. और आप काइंड ऑफ बोर हो गए और थक गए उन रिटर्न्स का वेट करते करते, एंड आपने फिर डिसाइड किया दैट, या आप अब डिसाइड कर रहे हो इन योर करंट टाइमलाइन, या तो आप कर चुके हो या फिर आप डिसाइड कर रहे हो दैट आप कुछ नया करोगे, आप कुछ डिफरेंट करोगे. अब आप अपनी एनर्जी नए एरियाज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई चीज़ों को दोगे, और उन पुरानी चीज़ों से अब आप वॉक अवे करना शुरू कर चुके हो. तो ये जो आपने आइडिया लाया ना अपने अंदर कि आप नई डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को दोगे, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, और यही आपका नेक्स्ट बिग अपग्रेड होने वाला है. जो ये चेंज आ रहा है आपकी एनर्जी के अंदर, वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है. नाउ आई एम गोना टच मोर ऑन दिस कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. तो स्पिरिट कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाह रही है ना कि ये जो चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से, इस चीज़ ने आपको इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दी इन रिटर्न, इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया इन रिटर्न, इतना ज़्यादा आपको वेटिंग एनर्जी में रहना पड़ा ना इस इंसान का या इस सिचुएशन के वर्कआउट करने का, वेट करते हो कि कहीं ना कहीं आप खुद ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए थे. आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, और आप एक नेगेटिव रोड पर ही निकल पड़े थे. मतलब आपकी खुद की एनर्जीज़ जो हैं मिस अलाइनमेंट में चली गई थी, और आपको वो चीज़ फील भी हो रही थी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, और आपको भी फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव रास्ते पे चले गए हो, आप रॉन्ग रास्ते पे चले गए हो, और आप आउटकम्स को फोर्स करने का भी ट्राई करने लग गए थे एक पॉइंट के बाद कि कैसे भी करके आपको रिवॉर्ड्स मिल जाए जैसे कि आप चाहते हो वैसे. और आपने बहुत कोशिश की इस चीज़ को फोर्स करने की,
और रियलिटी को आप फेस नहीं कर रहे थे, आप कहीं न कहीं डिनायल में थे और ये चीज़ आपकी चेंज हो रही है। डिनायल से आप क्लैरिटी के अंदर आ रहे हो और अब आप नो बोल रहे हो इस चीज़ को। आप एक बहुत बड़ा नो बोल रहे हो अपनी लाइफ में किसी तो चीज़ को जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग गए थे और जिसकी तरफ से आपको रिटर्न्स नहीं आ रहे थे। आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ियर भी हुआ होगा इस चीज़ की वजह से कि आप प्रिटेंड भी करने लग गए थे कि आप फ़ाइन हो। बट आपके अलावा ऑनेस्टली सबको, आपकी स्पिरिट टीम को, यूनिवर्स को, आपके आसपास के लोगों को, सबको ये चीज़ दिख रही थी, ये चीज़ विज़िबल होने लग गई थी दैट आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो और आप पुट अप कर रहे हो एक फ्रंट कि आप ठीक हो, आप अच्छे हो और आप मतलब अपनी लाइफ में ओके कर रहे हो, जबकि आप नहीं कर रहे थे। और स्पिरिट आपको यहाँ पे कहना चाह रही है कि वो आपको पुश कर रही है और रिकन्फर्मेशन दे रही है इस चीज़ पे कि सेटल मत करो, अपने आप को लिमिट डाउन मत करो। ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ के अंदर, इसके लिए अपने आप को श्रिंक मत करो और अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। आपको पता है कि इस सर्टेन सिचुएशन में आपका आंसर या इस पर्सन के लिए आपका आंसर नो होना चाहिए, पर आप तब भी उस आंसर को येस बनाने के लिए अपने आप से झूठ बोलते जा रहे हो। अपने आप को ही आप शो नहीं करना चाह रहे हो कि आप कितना थक चुके हो या आप कितना एग्जॉस्टेड हो एक्चुअली में। एंड ये चीज़ जो है अब नेगेटिव हो चुकी है और इसको यहाँ पे आपको लीव कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अब इसको अपनी एनर्जी और दोगे, ये चीज़ उतनी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। तो अपने जो आपको अंदर से एक पुश आ रहा है ना, आपके अंदर से जो थॉट्स आ रहे हैं कि आपको किसी नए डायरेक्शन में जाना चाहिए और किसी नई चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए और इस चीज़ को आपको गिव अप कर देना चाहिए, तो वो आपको सही पुश आ रहा है। बहुत सारे लोगों के एंसेस्टर्स भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ओल्ड पैटर्न्स तोड़े। ये जो सिचुएशन है ना आपकी लाइफ के अंदर, मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज रिसीव हो रहा है। ये जो सिचुएशन या जो भी सिचुएशंस आप डील कर रहे हो, जो सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर, ये सिर्फ आपकी करंट लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है। ये चीज़ इससे बहुत ज़्यादा डीपर है। ये जो चीज़, ये जो हैबिट, ये जो पैटर्न है जिसको आप कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहे हो जब आपको सर्व नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी ब्लड लाइन में प्रेजेंट रहा है पास्ट में भी। और आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप कुछ डिफरेंट करो, आप एक डिफरेंट चॉइस बनाओ और इस पैटर्न को आप ब्रेक करो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम एज वेल। तो वो आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको पुश कर रहे हैं इस चीज़ पे कि आप इस चीज़ को ब्रेक करो। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ आपके पास्ट लाइफ से आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये पैटर्न एक अनफिनिश्ड लूप है, ये सिचुएशन एक अनफिनिश्ड लूप है जो कि आपकी पास्ट लाइफ से अभी तक कैरी ऑन हो रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने इस चीज़ को हील नहीं किया है और लेट गो नहीं किया है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन ना ही वर्कआउट कर रही है और ना ही आप इससे आगे बढ़ पा रहे थे। आपको इस चीज़ ने फंसा के रखा हुआ है बहुत लंबे टाइम से और इसमें कोई ग्रोथ आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। और अब जो आपने ये डिसीजन बनाया अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट करने का और किसी और डायरेक्शन में जाने का, ये जो डिसीजन है ये यहाँ पे आपके लिए मेजर चेंजेस लेके आने वाला है। ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगर आप करियर में स्टक थे अभी तक अपने, अगर ये सिचुएशन आपके करियर से रिलेटेड है, तो आपको आपकी करियर की कॉलिंग मिलने वाली है आने वाले 10 डेज़ में। नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको एक रियलाइजेशन होगी, एक अंदर से आइडिया आएगा, एक पुश आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ सकती है। कुछ ऐसे फेटेड इनकाउंटर रहेंगे आपके, सॉरी, कुछ ऐसे फेटेड इनकाउंटर रहेंगे आपके जो कि आपको आपके सोल पर्पस के बारे में बताएंगे। आपको रिवील होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर कि आपका सोल पर्पस क्या है, कि आपका सोल और आपका हार्ट ट्रूली क्या डिज़ायर कर रहा है और क्या अलाइनमेंट में है आपके साथ इस करंट टाइमलाइन के अंदर। तो आपको ये चीज़ पता लगने वाली है।
कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटा कलेक्टिव दिख रहा है मुझे, जिसके अंदर आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है। तो अगर किसी के प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे थे, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या ऐसा कुछ चल रहा था, तो आपके फेवर में ये डिसीजन आता हुआ ऐसा मुझे रिसीव हो रहा है, ऐसा हो सकता है। ये आके वो डिसीजन आने वाला है आपके फेवर में, और आपको कुछ इनहेरिट होगा यहाँ पे अपनी फैमिली के टूवर्ड से। ये कोई एयरलूम भी हो सकता है आपकी फैमिली से आपको रिसीव हो कोई चीज़ जो कि आपकी फैमिली में वैल्यू की जाती है, जो कि पास डाउन की जाती है, और आपको वो चीज़ मटीरियलिस्टिक चीज़ रिसीव होने वाली है। ओके, तो ये बताया जा रहा है। सेकंड इज़, एक हेल्थ में भी आपका बहुत बड़ा अपग्रेड आने वाला है। ये जो आपका नेक्स्ट बिग अपग्रेड है, इसमें मटीरियलिस्टिक अपग्रेड तो है ही, आपके करियर में क्लैरिटी, अगर कोई फैमिली के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है तो उसका आपके फेवर में डिसीजन, कोई एयरलूम या मटेरियल सक्सेस आपको अपनी फैमिली की टूवर्ड से रिसीव होना, या इसके अलावा और एंड दोनों चीज़ें। ओके, सो और एंड हेल्थ की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से बहुत ज़्यादा लंबे कर रहे हो, जिनके ऊपर अभी तक आपका कोई बेटर नहीं हो पा रहा था, कोई बेटरमेंट नहीं आ पा रही थी, कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा था, तो अब ये जो चीज़ है यहाँ पर ना, ये आपकी इम्प्रूव होने वाली है। हेल्थ का कार्ड भी है यहाँ पे, देखो दिस कार्ड फॉर यू। तो अगर अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो और आपकी इस पर्सन से सिचुएशंस ख़राब चल रही है, अगर आप इमोशनल टर्मोइल से डील कर रहे हो, और अगर आपकी इमोशनल हेल्थ किसी स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन की वजह से अभी तक ओके नहीं चल रही थी, तो ये चीज़ भी रिजॉल्व होने वाली है आपके लिए। ये जो सिचुएशन है जो आपकी इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट कर रही थी, वो सॉर्ट होने वाली है। किसी की अपॉलॉजी आपको रिसीव हो सकती है यहाँ पे, आपका किसी से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने वाला है, और ये पर्सन आपको बताने वाले हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स, और एक हीलिंग आने वाली है। जो कॉन्वर्सेशन आपका होने वाला है ना इस स्पेसिफिक पर्सन से, जो भी ये पर्सन है आपके लिए, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई काउंटर पार्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो जिन लोगों के लिए कोई पर्सन है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल से डील कर रहे थे, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, तो ये पर्सन आपसे कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, और जो भी आपके बीच के गिले शिकवे और मन मुटाव थे ना, ये इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू ना सॉर्ट आउट होने वाले हैं, और एक हीलिंग आपके रिलेशनशिप्स में यहाँ पर रिसीव होती हुई मेरे को दिख रही है। ओके, तो एक आपके रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ सॉर्ट आउट होने वाली है, और एक हीलिंग यहाँ पर भी आपकी आने वाली है। फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड थी पिछले कुछ टाइम में, तो आपकी एनर्जी भी रिप्लेनिश हो सकती है। आप में से कुछ लोग हॉलीडेज़ पर जा सकते हैं अगले 1 to 1.5 मंथ्स के अंदर। आप में से कुछ लोग हॉलीडेज़ पर जा सकते हैं, और ये हॉलीडे किसी बीच के पास हो सकता है, बहुत ज़्यादा लाइकली है, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर वाटर हो, बीच हो स्पेशली, तो ऐसी जगह पर आप ट्रैवल कर सकते हो, और ये ट्रिप आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली रिज्यूविनेट करने वाली है। अगर आप इन जनरल भी ड्रेन्ड फील कर रहे थे और आपके पास इनफ एनर्जी नहीं थी, इमोशनल एनर्जी अगर आपकी ड्रेन थी बहुत ज़्यादा, तो वो भी आपकी यहाँ पर रिप्लेनिश होने वाली है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइन ये भी है कि अगर आप में से कुछ लोग सैलून जा सकते हैं अगले 1 वीक के अंदर, या फिर आप किसी तरीके का मसाज ले सकते हैं, लाइक अ फुल बॉडी मसाज। और अगर आपने कंसिडर नहीं किया था अभी तक, या फिर आपका ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो अब आप ये प्लान कर सकते हो, और आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज अ नाइस मसाज कैन रियली हेल्प यू ड्रेन ऑल ऑफ दैट gunk that has collected in your body, get rid of those high stress levels, replenish yourself, and energize your body and your mind, soul, spirit, everything. So you should probably get a massage.
ओके, और एंड पैम्पर योर सेल्फ। सो आपका फोकस कहीं ना कहीं अपने आप को पैम्पर करने पर भी जाने वाला है। कुछ लोगों का एक बहुत अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे दिखने को मिल रहा है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, आपको एडवाइस किया जा रहा है दैट यू शुड probably eat more greens and reds like beetroots and tomatoes and cucumbers and bell peppers. So you're being asked to like consume that kind of a diet and have a colorful diet and focus on working out, because that's gonna build in discipline for you, that's gonna detox your body, that's gonna help up your nervous system, and it's gonna be really a game changer for you in these tough times that you are facing. Okay, apart from property disputes, if you've been having other kind of disputes also, या किसी से किसी टाइप का कोर्ट केस और या फिर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अगर आपका किसी से चल रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का सल्यूशन भी आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू, एंड दैट आर द काइंड ऑफ अपग्रेड्स दैट आर देयर फॉर यू. 11:11 on the clock as I'm closing this video. So claim these blessings for yourself. Comment in the comment section down below that I claim so and so blessing, whatever blessing you're claiming, and just script it out. Practice scripting. ओके, सो जस्ट डू इट राइट नाउ. कमेंट सेक्शन में जाओ और जो भी सिचुएशन आप क्लेम कर रहे हो या जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में रिजॉल्व हो जाए, या जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाए, और उस चीज़ के बारे में लिखो दैट आई क्लेम द ब्लेसिंग ऑफ, कि मेरी लाइफ में ऐसा 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 हो गया है अभी से, एंड 11:11 उसके आगे लिख दो. सो मोटेड बी करके लिख देना, ठीक है. सो क्लेम दीज एनर्जीज और रियल लाइफ स्पेल अपने लिए. ये छोटा सा लिखना भी आपके वर्ड्स में बहुत इंटेंशन और पावर कैरी होती है, तो आप ये लिख कर अपने लिए एक मैनिफेस्टेशन कर सकते हो अभी के अभी. इट्स सो सिंपल. तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. फॉर